So, good afternoon, everyone, and I'm thankful to all of you to be here, and you are here to listen to me. That's what I'm going to talk about the women empowerment today. So, Stri Samarthya, it itself gives a name that every woman in our country is samarth, is saksham, or is empowered. But what I have seen in the remote areas and as well as in the entire India, that still the females, and you all also know that, are not very much empowered as they have to be and as they should be. The fact is that the main aim and the crux of this entire summit is that I want to bring the rural women, tribal women, and the urban women together on one platform so that they can have a same kind of opportunities. There should be a mentee and a mentor relationship among the urban and the rural women so that they can help creating a kind of systematic organizations in which they can teach these rural females about the things like digitalization, AI, green energy, green industries. I hope you all know that there are 48% women in our country as compared to men. And out of this 48% women, of course, 30% are in rural areas and 18% are only in the urban areas. Yes, this is surprising. And in those 18% also, you can tell me that how many of them who are really saksham and samarth? क्या हमारी सारी जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पे तो खैर आप के सामने तो नहीं है, हम दोनों ही महिलाएं हैं, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ मैं आज बैठी हूँ, या मे बी एटलीस्ट एनी प्लेटफॉर्म, आर दे एबल टू कम एंड स्पीक? आर दे एबल टू कम एंड रेज देयर वॉइसेस? नो. Why? Because their voices are actually they are not heard by anyone if they try to speak. उनके ड्रीम्स को, उनकी आवाज़ को, उनके सपनों को, उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है. एंड इट्स नॉट ओनली कि दबाया जाता है, कैसे दबाया जाता है, इसमें मैं पुरुषों को, मेल्स को कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ. हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोसाइटी तब से ऐसी है, 1200-1500 साल से ऐसी है, जब से हमारे ऊपर तुर्कियों ने, अफगानों ने शासन किया. तो दे हैव एक्चुअली चेंज द एंटायर मेंटल लेवल एंड मेंटल थिंकिंग ऑफ आवर सोसाइटी, एंड दैट इज हाउ एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग डाउन टुवर्ड्स द फीमेल्स. इंडिया वाज नॉट लाइक दैट अर्लियर. सो मोरओवर, इफ़ आई से दैट आज के दौर में अगर किसी महिला की आवाज़ दबाई जाती है तो उसकी इच्छाएं दबाई जाती हैं. तो फर्स्ट ईयर सिटीज़ की बात करें तो ठीक है, एक लेडी जो एक बड़े दफ्तर में बैठी है वो अपने घर पे भी अपना सारा काम कर रही है. अगर वो एक IAS ऑफिसर है, उसको अपने बच्चे की फिक्र भी है, उसको पूरे प्रशासन का उसका काम भी करना है, उसको सब कुछ संभालना है. पर क्या कोई मेल आके उसकी हेल्प करता है? आउट ऑफ वेरी फ्यू ऑफ कोर्स, जिनका अपना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, जो समझते हैं एक फीमेल को, वो करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ. पर जनरली ऐसा ही होता है कि वो एक औरत अकेली हर काम में लगी रहती है. What I actually want from this entire conference is that any female, whether she is staying in a very big huge office of Delhi, or she is hailing from the hilltop of Mizoram, or from Rajasthan, or from, you say, any jungle or like Bastar, she should get equal opportunities, and rural and urban and tribal females should come together. We should open such organization where they can be taught about the practicalities. See, here we are talking about AI today, we are talking about digitalization, but what you talk about that if you go to a very remote area or any tribal area, do they know this? No. They don't even know how to operate a smartphone. So we find a very different society sitting here, but there is a very different society where still the girl child is being terminated in the womb only. Before बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो मोदी जी ने स्टार्ट किया था, उससे पहले उस समय मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं इसके कि 45 से 50,000 फीटस उन्होंने खुद रेड, उनके जो जितने भी उनके आगे कर्मचारी थे, उन्होंने रेड्स कर करके 45 से 50,000 फीटस बचाए हैं.
मैं उन प्रशासकों को जानती हूँ जिन्होंने ये काम किया है। तो इसलिए आज भी जहाँ पे जिन एरिया में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ हम सेक्स डिटर्मिनेशन करें स्कैन्स के साथ और वॉट एवर देम जिस तरीके से भी उनको मिले कुछ भी करके, तो इस यहाँ में किसकी सोच हमें बदलनी चाहिए? औरतों की सोच तो नहीं बदलनी चाहिए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट समाज, तो समाज की सोच कैसे बदलेगी? सो इसके लिए हमने आज एक पैनल रखा है जिसमें हमारे मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे बात करने के लिए होंगे, और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप पे एमएससी पे बात करने के लिए होंगे। हमारी एक एसपी चंडीगढ़ आ रही हैं जो कि वुमेन क्राइम में मतलब डील करती हैं, तो उनसे बात करेंगे आजकल साइबर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आजकल की जो टीनेजर्स हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के बारे में नहीं पता, वो फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता वो किसे अप्रोच करें, तो उसके बारे में बात हम करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने समाज की सोच बदलनी पड़ेगी, और जितनी अवेयरनेस करेंगे, मेंटली जितनी अवेयरनेस करेंगे, उतना ही हमारा समाज बढ़ेगा। और उससे ज़्यादा हमारी अगर फीमेल्स फाइनेंशियल लिटरेट होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, तो उनका हमारा देश का पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ेगा साथ में। सो थैंक यू सो मच। आई वुड गिव इट टू Ritika ji for the further talk. Thank you so much, Dr. Monica. You're welcome, Ritika ji. Thank you so much. I think जब कुछ वीक्स पहले डॉक्टर मोनिका की टीम हमारे पास आई और बोला कि ये हमारा विजन है और हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, स्त्री सामर्थ्य, आई थिंक बिना पलक झपके मैंने हाँ कर दी थी कि येस CIIWN वुड लव टू पार्टनर, बिकॉज मैम की विजन इतनी बड़ी है एंड शी वांट्स टू कवर नॉट जस्ट अर्बन वुमेन बट रूरल वुमेन के ऊपर मैम का फोकस है. सो व्हेन द विजन इज द सेम, दैट यू वांट टू क्रिएट एन इक्विटेबल वर्ल्ड वेयर men and women get equal opportunities. We can never be equal. We're not fighting for equality. We're fighting for equal opportunities. That's why I'm using the word not an equal world but an equitable world. And I think when ma'am started talking and जब मैं इनसे पहली बारी मिली थी, I was absolutely blown away by her vision. And I said, ma'am, and she's done some amazing work. Her background is absolutely phenomenal in terms of women empowerment and the kind of different sectors of women that she has touched upon the last so many years that Dr. Monica has been working. So hats off to you, ma'am. Kudos for such a wonderful thing. Everybody needs another Dr. Monica in their ecosystem. But having said that, I think at CIIWN, we are just a network of about 50-60 women. It is an offshoot of CII, and I am currently the chair, and I'm also the last 6 months we've tried to do a lot of programs where we are talking about women's issues. I know that ye piche entire month was women's month, and I remember somebody asked me this question that Ritika ma'am, aapko lagta hai ki hame ye international women's day celebrate karna chahiye one day in a year, and हमारे तो सारे दिन होते हैं. And then I said that what you're saying is absolutely right, and the reason why we are sitting here and the reason why we have a vision here is because जब तक जैसे मैम ने अभी बात करी, the last rural woman, the last urban woman, चाहे वो जैसे I'm just quoting you मैम, मिजोरम के किसी हिल टॉप पे बैठी हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गुड़गांव में बैठी हो, every woman till she gets an opportunity, an equal opportunity to follow her dreams. आई थिंक तब तक ये हम विमेंस डे सेलिब्रेट करते रहेंगे, बिकॉज आज हम यहाँ बैठे, जब तक हम अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा. लॉट ऑफ विमेन डोंट इवन नो कि उनकी अब्यूज़ हो रही है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. हमें वो अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है. See, the point is that it's not a fight against men versus women. The fight is for everybody to have an equal opportunity in life to follow their dreams. It's a human effort. It's not कि हम लोग anti-men. I'm sure, ma'am, you would agree with me, right? I totally agree. Yes. So the idea is that we want to give equal opportunities to everybody. और जब तक ये platforms ऐसे summits, ऐसी vision, ऐसे लोग at the back रहेंगे and they will continue to add value, I think that is where we will see that till the last woman, किसी भी औरत की अगर कोई ड्रीम है, she should get the opportunity and the power to choose to follow it. हम ये नहीं कह रहे कि हम सबको इंडियन एयरफोर्स में जाके पायलट बनना है, बट अगर इस कंट्री में
एक भी ऐसी महिला है जो बनना चाहती है कि इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट, शी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट. सो लेट नॉट अ सिंगल ड्रीम ऑफ एनी वुमन डाई एवर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और अ लैक ऑफ सपोर्ट और अ लैक ऑफ वॉइस और प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस. थैंक यू सो मच. Ma'am, you have a panel, no, they have a panel discussion, but who are going to be the audiences today? So we have the mixed audiences today. They are generally females, men, children of teenagers, because they will be more, they should know more about this, specifically the females, because this is a Stri Samarthya program and the panel discussion is for the females. Of course, the men are invited. Men, there's a mixed, audience here. Yeah, but where all are these people from? They're from the Tri-City only, so some of them are coming from faraway places. Some of our awardees are coming from faraway places. Those who have actually done a very wonderful job. One lady is hailing from Bikaner, and she's doing a wonderful community work over there. Then there is one lady who has saved the lives of many children in Carmel Convent School when the tree fell 2 years back, approximately 3 years back. So we are felicitating her. Whereas if you're talking about the panelists are very much from here only. Educationists are there. They are from the monetary background, financial literacy. Then there's one lady who will talk about the POXO and the harassment which the females are facing. Of course, as I mentioned, the SP Chandigarh, she's going to brief you about all the aspects about girl safety, cyber security, sexual harassment, how a child or a female or a teenager or a woman also should not fall prey to anyone. How should they judge? Where are the red flags? This all will be discussed today in the panel. And moving forward, when you are saying what we are planning is we are planning to create such organizations, small organizations of women, those who will be able to teach and mentor these rural women. The rural women should be mentored in a way. See, I'm not saying that everything can be changed in a day, but at least somewhere we have to start. The Rome was not built in a day, so we have to start from now. Today we are into the AI world, and there is some place where nobody knows what AI is. Nobody knows what Paytm is, nobody knows what digitalization is. So we have to teach those ladies, we have to teach those women that they have their own voice. See, this is what I said, if a female is financially literate, she's financially independent, at least she will be vocal for something. She will be vocal for her rights. Today, why in India so many women are dependent upon men? Because they are not financially independent. And education, of course, and learning is required. But it's not like this that every time education only helps in creating the money or creating the financial independence for a woman. There are vocational courses, there is skill development. There are so many females. I have one female who is an artisan who's coming from one small village of near to Chandigarh only. She's working on Fulkari and she's maintaining the Punjabi culture. So what is she? She is not educated enough. She is not a maybe double postgraduate or something, but she is still working and earning her living and also maintaining at the same time maintaining the culture of our own country. So when a female is literate, at least she is not dependent on anyone. First of all, but yes, there are many aspects like most of the females are dependent on their, the husbands and many of the males like the sons or brothers. Why? Because they have been brought up like that. That environmental change has to be brought, and that can only be brought after the mental health discussions and the counselings. आपने ये भी कहा था कि मेन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस कैंपेन में। सर सोच तो है, प्लीज साइकी है कि उसको भी अगर चेंज करने की जरूरत है। कई हिस्सों में ऐसा है कि पेट्रियार्कल ज़्यादातर चलता है। एब्सोल्युटली। अब देखिए, आप सब मेल्स हमारे सामने बैठे हैं और आप एक जुड़कर एक मतलब हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, एंड यू आर फ्रॉम अ सिटी वेयर यू हैव अ डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट माइंडसेट.
बट अगर यही मैं सोचूं कि यही कॉन्फ्रेंस अगर मैं एक रिमोट विलेज में जाके कर रही होती तो क्या हमारे लिए इतनी इजी होता, क्या वहाँ पर सब लोग आते, और जो लोग आते उनकी सोच कैसी होती। सो बात वहाँ आ जाती है कि अगर एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक जानने वाली महिला हैं, शी इज़ अ वेरी वंडरफुल लेडी, शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, ओके, बट शी इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर 6 PM। क्यों भाई, काम क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज हर हस्बैंड इज़ वर्किंग समवेयर इन वेरी गुड पोजिशन इन गवर्नमेंट, सो दैट इज़ वाई उसको वाई शी इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर 6 PM। क्या ज़रूरत है? चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ, वाह। और तो छोड़िए आप। तो एंड शी इज़ ओके, शी सेज मेरे को अपना घर मेंटेन करना है। बट अब ऐसा नहीं है, एवरी वन हैज़ टू बी अंडरस्टैंडेबल, बट किसी के सपने नहीं ख़त्म करने चाहिए, किसी की इच्छाएं नहीं ख़त्म करनी चाहिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो उसको हमें पुश करना चाहिए एज अ मेल। और जब तक मेल्स की सोच नहीं बदलेगी तो फीमेल्स को पुश कैसे मिलेगा? हाउ विल फीमेल्स गेट टू दैट पॉइंट, टू दैट पिनेकल, if the males won't change their mindset? काफ़ी हो रहे हैं सर हमारे तो जिस तरीके से किसी तरह ब्लैकमेल भी हो रहा है, उसमें बड़े केसेस आते हैं। आजकल मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करती हूँ कि आजकल क्या प्रॉब्लम है कि आफ्टर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इट्स क्वाइट रिवैम्प्ड नाउ, नॉट लाइक 5-10 years बैक एज वी यूज्ड टू हैव अर्लियर। अब क्या होता है कि चंडीगढ़ में ही ऐसे केसेस 8-10 बता सकती है वो जिनकी पिक्चर्स मॉर्फ करके उनको ब्लैकमेल किया गया और उन्होंने पैसे भी दिए, एंड दे डिडंट हैव दैट गट्स टू अप्रोच टू एनीवन, including males, I would say, not only females. I know 2-3 males जिन्होंने पैसे दिए हैं और क्योंकि उनकी फेस को मॉर्फ करके ऐसा बताया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी और जो आप बात कर रहे हैं क्राइम्स की, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं आज। इसीलिए मैंने अपने पैनल में एसपी को रखा है और मैंने अपने पैनल में एक पॉक्सो लॉयर को रखा है। शी इज़ टोटली हैंडलिंग द सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड पॉक्सो मैटर्स. So, and she's working from past 20 years. So, of course, you will come to know about everyone when the panel comes in. So, we'll be having the panel after the departure of Honorable Governor. So, then you'll come to know the names and you can, of course, talk about it on their own. रितिका जी, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं और क्या सकता है अगर women get engaged more in setting up their own small businesses also? Absolutely. क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन सर। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कॉर्पोरेट में फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में द थिंग इज दैट वी डोंट नो वेदर अ वुमन व्हेन शी स्टार्ट्स अ बिजनेस वेदर इट्स गोइंग टू फेल और इट्स गोइंग टू बी अ सुपर सक्सेस। नौकरी तो हमें पता है कि आई एम नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु डू कॉर्पोरेट जॉब्स, आपको पता है आप गए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें बहुत कम चाहिए होती है। सो यू जस्ट नो यू आर गोइंग टू वर्क, अगर यहाँ पे काम नहीं अच्छा लगा, कोई एनवायरनमेंट नहीं पसंद आया, सैलरी पसंद नहीं आई, सो यू कैन मूव टू अनदर जॉब। देर आर अपॉर्चुनिटीज। आई एम नॉट सेइंग वो भी बहुत आसान होता है, बट इट्स अ डिफिकल्ट वन। एंटरप्रेन्योरशिप में अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए, सो यू डोंट नो, देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु कैन गारंटी वेदर आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द काइंड ऑफ सपोर्ट यू मे गेट। इट्स अ वेरी हाई रिस्क टेकिंग प्रोफेशन टू बी इन। वहाँ पे आई थिंक इट इज़ द विमेन जो हिचकिचाती हैं, बिकॉज उनको सबसे ज़्यादा, इवन एट होम, अ हस्बैंड विल नेवर गिव हिज वाइफ मनी और अ फादर विल थिंक 10 times अबाउट गिविंग हिज डॉटर मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट बेटों को हम लोग सिखाते हैं कि आप चलिए कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सो देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज फॉर मेन आर फार मोर एंड दे आर नॉट इवन जज फॉर एनी फेलियर्स। बट द मोमेंट अ वुमेन्स बिजनेस इज नॉट वर्किंग और द मोमेंट इट्स नॉट कि यू आस्क फॉर फंड्स और समथिंग, इमीडिएटली आपको जज किया जाता है कि अरे तुमको पहले ही बोला था, कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप घर बैठते, मेरे 5 लाख रुपए डुबो दिए, मेरे 10 लाख डुबो दिए। सो इट इज जस्ट द वे वी आर जज्ड। सो दैट इज व्हाई देयर आर वेरी लेसर वुमेन, बिकॉज दीज आर हार्श रियलिटीज। लाइक डॉक्टर मोनिका सेड कि हर एक औरत के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है दैट शी कैन रेज अ वॉइस, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट रूरल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक लाइक मैम जस्ट सेड दैट आफ्टर 6 PM एजुकेटेड फैमिलीज डोंट लेट देयर डॉटर्स इन लॉ आउट ऑफ द हाउस। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ये तो सब आपको करना ही पड़ेगा। यू डोंट नो, देयर विल बी जस्ट
before this press conference started, I was talking to these two amazing gentlemen, and हमने यही पूछा कि sir, how is the industry at the journalism level? And surprisingly, the results are right in front of you. Meghna sitting there is a part of our team, so you can just imagine that how many journalists are there. And sir did mention that yes, it is a tough job because there are times, there are deadlines. You're a journalist yourself, Sunil ji, you would understand the pressures this has. कभी 2 बजे कुछ स्टोरी फाइल करनी है, कभी 3 बजे करनी, कहीं अंधेरे में जाना है, कोई कई बारी आपके साथ है, कई बारी नहीं है आपके साथ, तो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है. So when it comes to entrepreneurship, I think we just need to be lesser judged and women with support, because ये अंदर हमारी कंडीशनिंग नहीं होती है सर. One thing I've always mentioned is that आप अगर अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए देखेंगे, अपनी बहनों के साथ देखेंगे, हम यूजुअली क्या करते हैं, एवरीथिंग लाउड कपड़े मत डालो, लाउड मेकअप मत करो, है ना, कपड़े जटाक मटाक मत मानो, सड़कों पे मटक मटक के मत चलो, डांस नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, एक्टिंग नहीं करनी. इतने सारे हम उनके ऊपर बंदिशें लगाते हैं फॉर अ सिंपल रीज़न दैट द वर्ल्ड आउटसाइड इज अनसेफ. सो वी डोंट वांट यू टू अट्रैक्ट अटेंशन. गलत बंदे की तुम्हारे पे नज़र पड़ेगी, तो दैट्स व्हाई वी ऑल सेड कि अपने घरों में चुप होके बैठो. माई चाइल्ड इज द सेफेस्ट व्हेन शी और ही इज सिटिंग इनसाइड द हाउस, शी स्पेशली, राइट. जब हम सडनली एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सेलिंग योर बिजनेस. सडनली नाउ वी आर टेलिंग वुमेन, इवन यंग गर्ल्स एट 24 की जाओ बेटा अब तुमने बिजनेस करना है, हमने पैसे दिया, जाओ धंधा करो. उसको तो शुरू से ही हमने सिखाया हुआ है टू always not attract attention. How will that girl at 24, 25 change her mindset and say कि now I will go, I will stand on a platform, I will talk, I will do this, I will sell my business, I will go and talk to an investor, I will ask for money, I will go and talk to a government official, I will go and talk to someone. So it becomes a mindset issue at home. You're all sitting here. Now you're listening to ma'am, you're listening to me, and you're at a women's summit, and we are trying to tell you it's not an equitable world. How many of you will actually go back and do the same in your own families? Absolutely, that is the question. That is the question. So आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आप लिखेंगे भी कि हाँ होना चाहिए, बहुत अच्छी ग्लोरिफिकेशन होगी औरतों की. But when you people go back home, or when we go back home also, it's, I mean, जितना हम आपके लिए बोल रहे हैं उतना अपने लिए भी उतना ही स्टैंड करते हैं. Absolutely, it's for us also that if we don't raise our voices and we are doing exactly the same things with our daughters, we are equally to be judged for that. So the idea is to have these conversations, to have awareness, to talk about it, that how does a woman think. जब बच्चों के लिए, जब I have to learn to drive a car, I have to go to a driving school. My younger brother had to learn to drive a car. वो 4 ड्राइवरों के साथ जाके अपने आप गाड़ी सीख के आ गया, and he is laughing at my face that you need to go to a driving school to get to understand how to drive a car. Because उनके पास ये opportunity. I cannot go and sit with 3 male drivers and tell them भैया मुझे गाड़ी चलानी सिखाओ. It's unsafe. I know it. I mean, I could, for all you know, be subject to some kind of a misbehavior. I don't know that. The point I'm just trying to make is let's create safer environments for women, so that when one woman wants to get up and say कि मुझे जाके ड्राइविंग स्कूल में या ड्राइवर के साथ बैठ के ड्राइविंग करनी है या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, at least I have a safe opportunity to do that. Thank you. मोनिका जी आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, solution is this again, that we have to change the mindset of the men. Mindset has to be changed. and इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें हम ऐसे काउंसलिंग सेशंस बोल सकते हैं. मैं अपने बेटे के स्कूल में भी 4 दिन पहले ही हमारा ओरिएंटेशन था, बोल के आई हूँ कि यू शुड एक्चुअली, इट्स अ ऑल बॉयज़ स्कूल, सो इसलिए आप अपने हर हफ्ते एक सेशन रखिए काउंसलिंग का, ताकि जो बच्चा बड़ा हो रहा है, चाहे वो एक मेल है या फीमेल है, उसे पता होना चाहिए कि हमने सोसाइटी में कैसा रहना है और हमारा एक व्यू पॉइंट क्या है फीमेल्स के लिए. इनफैक्ट इन ऑल बॉयज़ स्कूल इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर actually boys to maintain a relationship with a female. They don't even know that how to talk to a female and what is the actual humility which they have to follow with females. So this मोनिका जी बताइए कि आज जो इवेंट है उसका मेन फोकस क्या है? I want to create an equitable platform. Whether whatever happens, I want to bring हिंदी में कर देते हैं, ठीक है. इस आयोजन का महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि ये आयोजन इसलिए किया गया है स्त्री समर्थ्य, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं हमारी रूरल, अर्बन और ट्राइबल, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा और उन्हें इतना सशक्त बनना पड़ेगा कि उससे उनकी ग्रोथ हो और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बने, उनका एजुकेशन हो, और जो महिलाएं हमारी ग्रामीण हैं
वो आपस में मिलकर ऐसा काम करें कि वो सशक्त बने। हमारी जो महिलाएं हैं अर्बन एरियाज़ में, शहरों में रहती हैं, वो उन्हें मेंटर करें और उन्हें ऐसी सुविधाएं दिलाएं और ऐसे आयोजनों के द्वारा ऐसे काम करें और ऐसे उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं ताकि वो अपने आप में समर्थ हो पाएं और एकदम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाएं। थैंक यू। और इसमें आपकी जो सेशंस डिस्कशंस कौन से पॉइंट्स पे होंगे? हमारे डिस्कशंस होंगे हमारे पैनल में वुमेन सेफ्टी के लिए और एजुकेशन के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें हम MSMEs में और बात करेंगे और ये बात करेंगे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कैसे खुलवा सकते हैं, फिनेंशियल लिटरेसी, ताकि एक हर महिला फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो, अगर वो इंडिपेंडेंट होगी तो ही वो अपने आप को बढ़ावा देगी। और हम इस पे बात करेंगे उनकी एजुकेशन पे और पॉक्सो पे और उनके साइबर क्राइम पे। Sure, thank you so much. I'm Ritika Singh, the chairperson for CIWN, and I think जब कुछ देर पहले हमारे को ये opportunity मिली कि Dr. Monica Sood wanted to do this amazing summit with a beautiful vision on women empowerment, covering 7 different verticals for true empowerment of women. I think पलक झपकते ही हम लोगों ने हाँ बोल दी थी that we'd love to collaborate on a amazing platform like this, and I think it was just a matching of visions, because जो मैम की इतनी बड़ी विजन है उसी को हम भी बिलीव करते हैं और अपने तरीके से अपने अपने लिटिल प्रोग्राम्स करके, लिटिल वर्कशॉप्स करके वी आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग. सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट दिस हैड टू हैपन, एंड इट्स बीन एन अमेजिंग कोलैबोरेशन. Her vision absolutely matches that of CIIWN, that let every woman be empowered in every sense of the word. Thank you so much. Thank you.